السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر ہم آپ کے پاس ہمارے یونیورس کے بارے میں، ہماری گیلیکسی کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور ہم اس سے آگے چلیں گے جہاں تک ہم نے کل بات کی تھی۔ اور آج ہم بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ معلومات حاصل کریں گے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آگے چلتے ہوئے پھر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی تھیوری تک پہنچیں، لیکن اس کے درمیان میں جو جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ سمجھنا ضروری ہے۔ تو بات چیت کرتے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب۔ جی آپ شروع کر لیں ابھی بس۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے چلتے جائیں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام صاحب کی تھیوری کو سمجھنے میں کچھ جو جو ایلیمنٹ ہیں اس کو پہلے بیان کر سکیں۔ بگ بینگ تھیوری سے پہلے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ نالج کیا ہے۔ نالج جو ہے وہ اگر میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس سے دیکھیں تو اس کی چار لیولز ہیں۔ نمبر 1 ہے ڈیٹا ہے، را مٹیریل ہے، را ڈیٹا ہے۔ اس سے آپ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس انفارمیشن سے کچھ نالج کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور اس نالج کو پھر آپ استعمال کر کے وزڈم بناتے ہیں۔ تو یہ 4 لیولز ہیں۔ اس کے پیرالل ہمارے پاس ٹیچنگ میں وہ ہے بلوم ٹیکسونومی۔ یہ ہر ٹیچر کو اس کا علم ہونا چاہیے، ٹیچر کو بھی علم ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ 6 لیولز ہیں، 6 اور 7 لیولز ہیں جو کہ ایک نالج کے ہونے چاہیے۔ نالج جو ہے وہ پہلا لیول جو ہے وہ نالج کا ہے کہ آپ کو کوئی علم ہو۔ مثلا آپ جرمنی کے بارے میں اگر جاننا چاہیں کے بارے میں علم، یعنی جرمنی کتنا بڑا ہے، جرمنی کے بڑے شہر کون سے ہیں، جرمنی کے آس پاس کون سے ممالک ہیں، جرمنی کی ہسٹری کیا ہے تھوڑی بہت، یہ جو نالج ہے یہ پہلا لیول ہے جس کو نالج کہتے ہیں۔ مثلا بگ بینگ تھیوری یہ کیا ہے، اس کا انحصار کن چیزوں پہ ہے، یہ ایک نالج ہے جو کہ سطحی نالج ہے۔ نمبر 2 نالج جو ہے وہ کمپریہنشن ہے، اور کمپریہنشن کو پاکستان اور انڈیا اور وغیرہ میں یہ کہتے ہیں کہ بار بار اس کو رٹا لگا لینا، حالانکہ رٹا نہیں ہے، اس کو 360 ڈگری ہر لیول سے اس کو جاننا، لیکن وہ ہوتا ہے سطحی لیول سے ہوتا ہے۔ اور سنجیدگی جو ہے اس کے بارے میں آپ مزید جانیں کہ ہر شہر کی آبادی کتنی ہے، شہر میں انڈسٹری کیسی ہے وغیرہ وغیرہ، درجہ حرارت کتنا ہے، ٹیمپریچر کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، یہ ایک نالج ہے، یہ کمپریہنشن ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے معاملے میں یہ ہوگا کہ اور تھیوری کیسی ہے جو کہ بگ بینگ تھیوری کے مد مقابل پہ ہے، یہ ایک نالج ہو جائے گا۔ جو پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ایگزام اور جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ یہ 2 لیول پہ منعقد کرتی ہیں۔ لیول 1 جو ہے اس پہ لسٹ مطلب ہوتا ہے کہ بیان کیجیے، کوشچن بھی ہوتا ہے لسٹ۔ کمپریہنشن میں ہوتا ہے ایکسپلین، جو بھی کوشچن ہوگا اس میں ایکسپلین کیے کریں۔ تو یہ 2 لیول ہیں، آپ ایک چیز جانتے ہیں، آپ کو اس کا علم ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ مقدار میں جانتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ پیرامیٹر جانتے ہیں، یہ ہے دوسرا لیول۔ اس کے بعد تیسرا لیول ہے اپلیکیشن۔ آپ نے جو نالج حاصل کیا ہے اس کو ٹرانسفر کیجیے کسی اور جگہ کے اوپر۔ جو چیزیں آپ جرمنی کے بارے میں جانتے ہیں، مثلاً شہر ہے، پاپولیشن ہے، اس کی جی ڈی پی ہے، اس کے ہمسایہ ممالک ہیں، کیا یہ اسی طرح کا نالج آپ کسی اور ملک کے لیے استعمال کر سکتے، وہ چیزیں جان کے آپ اپنا پورے یورپ کو جان سکتے ہیں۔ اور مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے تو اس کو کہاں اپلائی کر کے یوزفل اس کو بنا سکتے ہیں، اس نالج کی اپلیکیشن کیا ہے، یہ اپلیکیشن ہے۔
इस सिलसिले में जो इंडस्ट्री है वो हेल्प करती है यूनिवर्सिटीज को कि जो आपने नॉलेज बनाया है उसको हम कैसे उसको इस्तेमाल करके कोई यूजफुल चीज बना सकते हैं। इसलिए जो यूरोपियन और अमेरिकन और वेस्टर्न जो हैं वो यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट ये तीनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। उसके बाद जो है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि तोड़ देना, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देना। तो जब आप एक मसले को उसके कंपोनेंट में कन्वर्ट करके हर कंपोनेंट को जानेंगे तो ज्यादा ज्यादा आप जानकारी हासिल कर सकेंगे, ज्यादा उसके बारे में जान सकेंगे। तो इसको कहते हैं एनालिसिस, कुल को जुज में कन्वर्ट कर देना। तो ये है एनालिसिस। और इसमें जो जो एप्लीकेशन है, मैं बयान कर रहा था पाकिस्तान के हिसाब से, जो एप्लीकेशन में क्वेश्चंस आते हैं आने चाहिए उनमें होता है कैलकुलेट, डिटरमिन, ये चीजें आती हैं। एनालिसिस में ये है डराइव। टीचर पूछता है कि ड्राइव ये करो, ये कंपेयर करो, ये वगैरह। और जहां जहां जिन ममालिक में इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज को हेल्प नहीं करती वहां ये एप्लीकेशन नहीं होती। जहां इन्वेस्टमेंट नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से यूनिवर्सिटीज में, तो वहां वो नॉलेज जो है वो 2 लेवल पे खड़ा हो जाता है। तो उसकी एप्लीकेशन नहीं है तो वो नॉलेज बराए नॉलेज होता है। एनालिसिस के बाद तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस। एनालिसिस कुल को जुज में कन्वर्ट करना। मसलन मैकेनिक जो है वो कोई चीज उसने खराब है उसको पहले उतारेगा फिर उसको सही करेगा। एनालिसिस के बाद है सिंथेसिस, जो आपने कुल को जुज में किया है जुज को फिर कुल में कन्वर्ट करें। बाज को हमें वो जो है बाज मैकेनिक जो है वो चीजें उतार तो लेते हैं लेकिन दोबारा उनको लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक फन है कि आप जुज से कुल की तरफ जाएं। और इसमें है इंप्रूवमेंट, कैसे आप जो जुज है उसको समझें और उस जुज में इंप्रूवमेंट करें। मसलन बिग बैंग थियरी है, उसके कई अज्जा हैं, कई जुज हैं, जहां जहां वो कुछ एरर है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश है, उसमें ट्यून करने की कोशिश है, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने की कोशिश है। तो ये सिंथेसिस जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका भी ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्री और फंडिंग से के साथ है। उसके बाद जो आखिरी जो है वो है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन वो कर सकता है जो जानता हो पूरे एक नॉलेज के पूरे स्टेजेस को। मसलन कंपेयर करें जर्मनी को पाकिस्तान के साथ, इसका मतलब है आपको जर्मनी के बारे में बहुत अच्छा इल्म है, पाकिस्तान के भी बारे में बहुत अच्छा इल्म है। आप एक पैरामीटर नहीं ले सकते, कोई और फैक्टर भी कह सकते हैं। मसलन जीडीपी है, मसलन पॉपुलेशन है, मसलन उनकी इकोनॉमी है, मसलन जस्टिस सिस्टम है। क्यों जर्मनी जो है वो इतना आगे चला गया, जबकि पाकिस्तान उनको मदद करने वाला मुल्क था जर्मनी को। 14 ममालिक में से पाकिस्तान भी एक मुल्क था जो मदद देता था जर्मनी की तरक्की के लिए। और अब वो हालत आ गई है कि जर्मनी बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान वहीं खड़ा है। तो ये जो है इवेल्युएशन जो है ये उस वक्त होगी जब आप दोनों चीजों को जानते हैं। उसके आगे जो फाइनल है वो है क्रिएशन, क्रिएट करना, न्यू नॉलेज को क्रिएट करना। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नया नॉलेज जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी और रिलेटिविटी और मतलब कई और नॉलेज जो है वो बयान किए हैं। तो ये है 6 और 7 लेवल। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 3 एप्लीकेशन, नंबर 4 एनालिसिस, नंबर 5 सिंथेसिस, नंबर 6 इवेल्युएशन, नंबर 7 क्रिएट न्यू नॉलेज। तो इसके साथ अब हम आएंगे जी बिग बैंग थ्योरी के अंदर। बिग बैंग थ्योरी जो है उससे पहले, जैसे कि हमने पहले कहा है कि स्टेडी स्टेट थ्योरी जो थी वो मार्केट में थी और बड़ी कामयाब थी। उसमें
यही समझा जाता था कि जो यूनिवर्स है वो अजल से है, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मैटर बनता जा रहा है, कारखाना लगा हुआ है, वो मैटर बनाया जा रहा है, गैलेक्सीज बनती जा रही है और ये कारवां जो है जारी है। कैसे मैटर बनता है, कैसे, वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल हिसाब से सही बयान कर रहे थे। लेकिन ये एडविन हुबल जो अमेरिकन थे, उन्होंने एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने साबित किया कि जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज जो है वो हमसे दूर भाग रही है। जितनी दूर गैलेक्सी होगी उतनी तेज वो जाएगी। अगर एक गैलेक्सी हमारे नजदीक है वो स्लो है, एक गैलेक्सी हमसे दूर है वो फास्ट है। इसका मतलब जितना हमसे उसका फासला है उसकी निस्बत उसकी वेलोसिटी से है, वो कितनी हमारे से दूर जो वो जा रही है। ये आप जो स्क्रीन दिखा रहे हैं, इसमें गैलेक्सी नंबर 1 है, गैलेक्सी नंबर 2 है, गैलेक्सी नंबर 3 है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये नहीं है कि हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। सो हम देख रहे हैं एक गैलेक्सी जो है, हम गैलेक्सी नंबर 1 और गैलेक्सी नंबर 2। गैलेक्सी नंबर 1 जो है, जो कि हम दिखा रहे हैं, वो एक हमसे उसका जो फासला है वो एक पैमाना है, उसको कहते हैं मेगा पार्सेक। 1 मेगा पार्सेक का मतलब है 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स, यानी कि ये 32 लाख साल दूर है, हमसे 32 लाख साल दूर है। अगर वो 1 मेगा पार्सेक है, 1 मेगा पार्सेक का मतलब 32 लाख साल, तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो मूवमेंट है, जो रफ्तार है, वो 70 किलोमीटर पर सेकंड है। तो 1 मेगा पार्सेक और 70 किलोमीटर पर सेकंड। फर्ज करें हम एक और गैलेक्सी है जो कि 2 मेगा पार्सेक है। सो 2 मेगा पार्सेक जो है, उसका ये मतलब है कि वो 6.65 लाख साल दूर है। पहली जो है 32 लाख है, दूसरी जो है 65 लाख साल दूर है। वो हमसे डबल स्पीड से दौड़ रही होगी। पहली जो है वो 70 किलोमीटर पर सेकंड है, दूसरी जो है 140 किलोमीटर पर सेकंड है। इसी तरीके से अगर तीसरी गैलेक्सी है, वो 3 मेगा पार्सेक पे है, तो वो 3 गुना ज्यादा पहली से वो दौड़ रही होगी और उसकी जो रफ्तार होगी वो होगी 210 किलोमीटर। पहली जो है 1 पार्सेक, वेलोसिटी उसकी 70, दूसरी 2 पार्सेक, वेलोसिटी उसकी 140, तीसरी जो है 3 पार्सेक, उसकी जो वेलोसिटी है वो है 210 किलोमीटर पर सेकंड। जितनी को नजदीक है वो स्लो है, जितनी दूर है वो फास्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर एक गैलेक्सी रोशनी की रफ्तार से दौड़ रही हो तो वो कितनी दूर होगी? यानी कि पहली जो है वो 70 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से है, दूसरी है 140 के हिसाब से है, 140 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। जो तीसरी है वो 210 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है। चौथी, पांचवी, एन जो है आखिर में देखें कि लिमिट क्या है। एक वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि मैक्सिमम स्पीड है, उससे अगर जा रही है तो वो जो चार्ट आपने दिखाया है उसमें मैंने पहले जो है वो वेलोसिटी दिखाई है, पहले रो में 70,
अगर 70 किलोमीटर फी सेकेंड है तो वो उसका जो डिस्टेंस है 1 मेगा पार्सेक, दूसरी का 2 मेगा पार्सेक, तीसरी का 3 मेगा पार्सेक, और जो जिसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ होगी वो है 4296, यानी कि 4300 मेगा पार्सेक। अगर ये 4300 मेगा पार्सेक का मतलब है कितने लाइट ईयर, तो वो बनते हैं 13 अरब 8 करोड़ साल। ये है लाइफ यूनिवर्स की, यानी कि 13 अरब और 8 13 अरब 7 करोड़ साल। उसके बाद आगे प्रॉब्लम है, फर्स्ट किया उसके आगे भी कोई गैलेक्सीज हैं जो वेलोसिटी लाइट से भी हैं, आगे हैं, तो वो हमें नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उससे स्पीड जा रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो लाइट ही है जो वापस आनी है, तो वो हमें नजर ही नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि हमारा जो अहाता है वो 13 अरब 8 करोड़ साल है। उसके बाद जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये है हुबल लॉ। ये फ्यूचर में अगर जा रहे हैं तो ये फैल रही है, अगर वापस आ रहे हैं माजी में तो ये सिकुड़ रही है। तो जब सिकुड़ रही है तो सिकुड़ते सिकुड़ते अगर 13.8 अरब साल 13 अरब 8 करोड़ साल पे अब पहुंची हुई होगी है, तो उससे पीछे जाए तो ये एक छोटा सा नुक्ता जिसका जो वॉल्यूम है वो जीरो है, उस पे होगी जब टाइम जो है वो जीरो होगा। ये इसकी एक दलील है, लेकिन उसके बाद 3 दलीलें और भी हैं। 3 जो है, नंबर 1 जो शीट नंबर 2 है हमारी, उसमें है, ये मैंने पहले बयान कर दिया है कि 1929 1929 में एडविन हुबल ने ये जो है हुबल लॉ बनाया था। तो वो बताता है कि जितनी गैलेक्सी हमसे दूर होगी उतनी फास्टर वो मूव करेगी। इसका मतलब है कि जोन बने हुए हैं तो वो उनकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये नंबर 1 दलील है ये बिग बैंग थ्योरी की। नंबर 2 दलील जो है वो ये है कि जो मादा है यूनिवर्स में, जो विजिबल यूनिवर्स है, उसमें हाइड्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा है। ये जो थ्योरी थी 3 फिजिसिस्ट थे, अल्फ्रेड, पेथे और गैमोव, इन्होंने पेश की कि जब ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये जब जमीन जो यूनिवर्स थी बहुत छोटी थी, उस वक्त जो मिकदार में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद हीलियम जो प्रोड्यूस हुई है उसमें जो रेशियो है वो ये होनी चाहिए। उन्होंने थ्योरेटिकल मालूम किया कि 92% हाइड्रोजन है और 8% जो है वो हीलियम है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं जिसमें लोहा, जिसमें एल्यूमिनियम, जिसमें सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, जो पीरियोडिक चार्ट में आते हैं, तकरीबन 200 के करीब एलिमेंट, उनकी मिकदार नेग्लिजिबल जीरो के करीब है। ये थ्योरेटिकल था जो कि अखज़ किया गया है बिग बैंग थ्योरी से। उस वक्त जब ये एलिमेंट जो है वो बन रहे थे तो उसमें हाइड्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा थी और हीलियम की मिकदार बहुत कम थी। और जो अब जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है तो ज्यादा जो स्टार्स हैं उसमें जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वजह से ये है कि उसमें जो है फ्यूजन रिएक्शन होते हैं जो जिससे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। हमारा जो सूरज जो है उसमें भी फ्यूजन रिएक्शन होता है।
हाइड्रोजन जो है वो मिलके हीलियम बनाती है। तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साबित किया कि हर जगह पे हाइड्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा है, हीलियम की मिकदार जो है 1 और हाइड्रोजन की मिकदार 10। 90% जो है वो हाइड्रोजन और 10% हीलियम है। ये दूसरा सबूत है। तीसरा सबूत जो है वो ये जो दूसरा सबूत है वो 1948 में हुआ था, और तीसरा जो सबूत है वो 1964 में हुआ है। उसमें जो है कि जो टेम्परेचर है यूनिवर्स का, शुरू में जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई था, जब यूनिवर्स जो है वो 380,000 साल पुरानी थी। 380,000 साल पहले हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस बने थे सिर्फ। बिग बैंग थ्योरी से लेके 380,000 साल तक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बना और हीलियम का न्यूक्लियस बना। हाइड्रोजन ज्यादा मिकदार में थी, हीलियम कम मिकदार में थी, लेकिन उसके ऊपर जो एक और जर्रा है वो अभी नहीं मिला था, यानी कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन और हीलियम का न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। उसके ऊपर अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो कॉम्बिनेशन बन जाए। तो इस कॉम्बिनेशन में सिर्फ न्यूक्लियस से एटम बनने में 380,000 साल लग गए। जब 380,000 साल बन गए तो ये न्यूट्रल एटम बन गया। तो जब न्यूट्रल एटम बना है तो वो एक स्टेबल हुआ है, और उस वक्त जो टेम्परेचर था, क्योंकि उस वक्त तक 380,000 साल तक हर लम्हा वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो बल्कि उससे ज्यादा एक्सपेंड कर रही थी यूनिवर्स। तो उस वक्त वो ठंडी होके 300 केल्विन 3000 केल्विन पे आई है, और 3000 केल्विन पे जो रेडिएशन इमिट होती है, जैसे कि एक लॉ है, जितना गर्म कोई मादा होगा वो उतनी रेडिएशन जो है वो इमिट करेगा। हमारा जो सूरज जो है वो 5000 केल्विन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और येलो कलर जो है वो लाइट इमिट करता है। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कलर होते हैं। तो वो जो 3000 केल्विन पे था टेम्परेचर, उस वक्त 380,000 साल गुजर चुके थे बिग बैंग थिंग से। तो उस वक्त जो माइक्रोवेव जो पैदा हुई है वो आज तक है। तो वो जो माइक्रोवेव है उस वक्त सिमेट्रिकल थी, सिमेट्रिकल इमिट हुई है, और वो टेम्परेचर 3000 से कम होता 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 अब 2.7 केल्विन पे है, और जो कि -455 फ़ारेनहाइट पे है। और ये टेम्परेचर जो है ये थ्रू आउट द यूनिवर्स से, ये तीसरी एविडेंस है कि बिग बैंग थ्योरी। नंबर 1 है हुबल कांस्टेंट, कि जो गैलेक्सी जमीन के करीब है, जमीन ये रिंग सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है, ऑब्जर्वर। अगर हम किसी और गैलेक्सी में चले जाएंगे तो उसके हिसाब से सारी चीजें ऐसी हो रही होंगी। हम ऑब्जर्वर के से जो गैलेक्सी हमारे करीब है वो स्लो है, जो गैलेक्सी हमसे दूर है वो फास्ट मूव कर रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हाइड्रोजन की मिकदार पूरी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन के अलावा जो है वो हीलियम है, हीलियम 1 और हाइड्रोजन 9। तो 10% और 90% ये मिकदार है जो कि बिग बैंग थ्योरी से इन्होंने थ्योरेटिकल प्रेडिक्ट किया, जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रूव हो रहा है। और तीसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, के हर तरफ जो है वो जो टेम्परेचर था, जब ये उसके पहले वो सूप था, उसके 380,000 साल बाद फिर ये ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स हुई है।
और फिर वो रेडिएशन जो है वो बाहर निकली हैं, उससे वो जो है वो आज तक नजर आ रही हैं। तो ये तीसरी एविडेंस है बिग बैंग थ्योरी। बस साइंसदान जो है वो बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते, जिनमें बड़े बड़े साइंसदान भी हैं। उनमें उनमें इख्तिलाफ ये है कि जब ये यूनिवर्स जो थी वो 380,000 साल पुरानी थी, जब न्यूक्लियस से एटम बनने शुरू हो गए, जब ये ट्रांसपेरेंट हुई है, उस वक्त एक्सपेंशन क्या थी? उस वक्त हुबल जो कांस्टेंट था जो हम कहते हैं वो क्या था? वो है 67.4 और अब जो है वो है 74। तो 67 उस वक्त था, अब 74 है। वो डिफरेंस है वो 10% का है। तो वो ये जो मिसमैच है, इसकी वजह से बास जो है लोग जो है वो उसको तकरीबन सही नहीं मानते। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इशू है। तो अब तक हमने ये बयान किया है कि नॉलेज जो है उसकी कितनी लेवल्स हैं और कौन सा लेवल जो है वो जरूरी है। जो लेवल जो है टीचिंग में वो कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन एनालिसिस और क्रिएट तक भी होना चाहिए। उसके लिए इंडस्ट्री की कोऑपरेशन और फंडिंग होनी चाहिए। और हमने ये भी बयान किया है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्यों आज पॉपुलर है। उसकी 3 एविडेंस हैं। सबसे बड़ी एविडेंस जो है वो हुबल कांस्टेंट है, जो कि गैलेक्सी की मूवमेंट के बारे में है, और उससे हम यूनिवर्स की लाइफ जो है वो बयान कर सकते हैं कि आज तक कितनी लाइफ हो चुकी है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है हाइड्रोजन की मिकदार जो कि बहुत ज्यादा है, और तीसरी है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये 3 जो हैं बड़े ऐसे स्तून हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा वो होगा इंशाल्लाह ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी का अमल मतलब क्या है और न्यूटन लॉ के बारे में। और ये जो प्रोग्राम है ये काफी मुश्किल प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा थोड़ा सा सहल होगा, थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये भी जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने फरमाया कि आखिर में हम प्रोफेसर सलाम साहब की जो थ्योरी है जिसमें 4 ताकतें जो हैं, ग्रेविटी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो 4 ताकतें जो हैं वो 3 हुई हैं। इन चारों ताकतों के बारे में हमें ज्ञान करना जरूरी होगा। तो नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह हम ग्रेविटी और जो है आइजैक न्यूटन के बारे में हम ज्ञान करेंगे। तो ये जी सर, बहुत शुक्रिया। अब जितने मेरे जैसे लोग हैं ज्यादा इल्म नहीं रखते, उनके तो सर से गुजर गए। क्वेश्चन नहीं किया। तो मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं, वो कल के प्रोग्राम के बारे में भी कह रहे थे कि चूँकि बुजुर्ग हैं, वो कह रहे थे कि मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन बहरहाल जो इस चीज़ से मुतल्लिक हैं लोग, उनके लिए बड़ा मुफीद मालूमात हैं। जो इल्म रखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा मुफीद है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मज़ीद इसमें अब समझना आसान होगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह फिर आपके पास हाज़िर होंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहें? एक ये भी हो सकता है जी जी कि यूनिवर्स जो है वो 2 हिस्सों में हो। एक यूनिवर्स है जो विजिबल है, विजिबल जो मेरा हाथ है। दूसरी जो है ये जो मेरा नीला कोट है ये इनविजिबल है। आपको मेरे हाथ जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है ना जी? ये आज है। माजी में चलते जाएं
تو یہ جو ہے یہ سپورٹ کی جائے گی تو یہ کم ہوتے جائیں گے. اچھا تو اب جو ویزیبل ہے وہ یونیورس وہ ختم ہو گئی ہے, انویزیبل ہو گئی ہے. ٹھیک آپ ہے. کو سمجھ آئی میری لوگ یہ آج ہے ٹھیک ہے. ویزیبل جو میرے ہاتھ ہے, جو میرا کوٹ ہے, یہ انویزیبل یونیورس ہے, وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا جی, یہ آج ہے. ہم ماضی میں جاتے ہیں تو ماضی میں سکڑے گی نا, جی تو ویزیبل یونیورس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, 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 آخر میں ایک پوائنٹ پہ آ جاتی ہے. وہ جو جی جی پوائنٹ ہے ویزیبل وہ آپ کو نظر وہ مشاہدے میں نہیں ہے. ہاں جی ایسے ہی. ابھی تک کوٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, جو انویزیبل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری یونیورس ایسی یونیورس میں ہو جو کہ کمبینیشن ہے انویزیبل اور ویزیبل کا. ٹھیک ہے. ہمارا ایک ایسا برتن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہو جس میں یہ ایک یونیورس ہے. اس کا مطلب کہ ایک یونیورس اور ایک اور یونیورس, ایک اور یونیورس ایسی یونیورس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک اور ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے تو ملٹی یونیورس کہتے ہیں, لیکن یہ تو سننا مشکل ہے. جی لیکن جی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو مشکل کانسیپٹ ہے اس کو کسی طریقے سے آسان طریقے سے بیان کر سکیں. لیکن ہماری یہ دشواری ہے کہ ہم ایک حد تک آسان کر سکتے ہیں, اس سے جی زیادہ نہیں. جی سر بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ تعالیٰ بہت نوازش. تو ناظرین کرام ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے اور کل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اگلا حصہ ڈاکٹر صاحب کس موضوع پہ ہوگا؟ اگلا حصہ انشاءاللہ جو ہے وہ سرائے نیوٹن اور گریوٹی کے بارے میں ہوگا. جی گریوٹی کے بارے میں. گریوٹی کے بارے میں, گریوٹی جو گریوٹی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا جی ناظرین, پھر یہاں آپ سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کے کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نیچے پروگرام کے اندر کمنٹ باکس میں.